worship you, Father. We have come to lift your name on high, Lord. There is none like you, Lord. We thank you, Father. Today, we take refuge in you, Lord. You cover us, Lord. Thank you, Father. We thank you for you inhabit the praises of your people. We love you, Lord. We trust in no one else but you, Lord. Some trust in chariots, some trust in horses, but we trust in your name, Lord. We simply want to live for you, Lord, for you alone, Lord. Say the word, and I will sing for you over oceans deep. I will follow. If each star was a song, every breath of wind praise, it would still fail my heart to say, all my heart contains. I simply live for you. Say the word, and I will sing for you over oceans deep. I will follow. If each star was a song, every breath of wind praise, it will still fail my heart to say, all my heart contains. I simply live for you. Oh, I simply live for you. As the glory of your presence now fills this place, in worship we will see you face to face. There is nothing in this world to which you can be compared. Glory on glory, praise upon praise. You bind the brokenhearted and save all my tears. And by your word you set the captives free. There is nothing in this world that you cannot do. I simply live for you. I simply live, oh, I simply live for you. Say the word, and I will sing for you over ocean deep. I will follow. If each star was a song, and every breath of wind praise, it was still fail my heart to say, all my heart contains. I simply live, oh, I simply live for you. I simply live, Jesus, I simply live for you. Let's all sing, I simply live. I simply live, oh, I simply live
We love you, Lord. All we want to do is worship at your feet, Lord. We bow at your feet, Lord. You are great. You are worthy of all praises, Lord. Thank you, Father. You are holy, you are almighty, you are wonderful, Lord. You are loyal, you are faithful. Thank you, Lord. Thank you, Father. We praise you, Lord. We praise you, Father. We simply live to worship you. We simply live to give you glory, Lord. Give you glory, give you honor, give you all the praise, Father. Thank you, Father. You are worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are worthy of all praises, all the honor. You are worthy of everything, Father. You are worthy, Lord. You are worthy. You are worthy. You are worthy. Thank you, Father. We give our lives to you, Lord. You are worthy of everything, Father. We love you, Lord. We simply want to live for you, Lord. We simply want to lift your name on high, Lord. We simply want to give you all the glory, all the honor, and all the praise, Lord. We thank you, Lord. We thank you. We simply live for you, Lord. We simply live to worship you, Lord. We simply live to exalt your name, Lord. Because you are holy, because you are worthy. Thank you, Father. You reign, Father. You reign, Lord. Thank you, Father. We thank you for dwelling in midst of us, Father. We thank you for everything, Lord. We thank you for listening to us, Lord. We thank you for you never sleep, you never slumber, Lord. We love you, Lord. We look to you, Father. We look at you, Lord. We open our eyes, Lord. Open the eyes of our hearts, Lord. Thank you, Lord. We give you this worship, Father. Accept it as a pleasing sacrifice. In Jesus' name I pray, amen. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। के फाटकों में हम प्रवेश करेंगे धन्यवाद देते हुए। क्यों ना उसको धन्यवाद दे जिसने हमारे मुख से प्रशंसा को सुना, जिसने हमारे मुख में शब्दों को रखा, जिसने हमें मृतकों में नहीं रखा पर हमें इस दिन का नया सूरज दिखाया। तो आइए हम धन्यवाद दें परमेश्वर को। जिस किसी के जीवन में गवाही है, परमेश्वर को धन्यवाद दें। और प्रभु के नाम से पास्टर जी को और सिस्टर रेखा जी को और इधर सभी जन को प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ। इस फैमिली में हमारा फैमिली को जोड़ के रखा है। पास्टर जी ने प्रेयर वॉरियर्स को रखा बहुत साल का पहले, 7-8 साल से प्रेयर वॉरियर्स से अर्ली मॉर्निंग आता है। तो सबका साथ में अम्मा भी रहता है साथ में। अम्मा का साथ में एनी टाइम एवरी टाइम अक्का आप आके अम्मा का साथ में प्रेयर कर सकता है करके मुझे बताया। तो मुझे प्रेयर करने का बहुत ही इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारा प्रार्थना से प्रभु बहुत अद्भुत कार्य करता है। जिसको प्रभु नहीं जानता है उनको उद्धार में आने के लिए इसमें स्ट्रगल्स में रहता है, परेशानी में और शरीर में परेशानी, और ये सब प्रेयर लिस्ट में पास्टर जी ने जिसका उनका पास आता है वो सब एक लिस्ट में ऐसा मैसेज देता है। तो अम्मा और मैं प्रार्थना करते हैं उनके लिए, वो नहीं जानता है, लेकिन हम लोग ऐसा विश्वास है उनको छुटकारा होने का, उनको चंगाई मिलेगा, तब तक हम लोग निरंतर प्रार्थना में रखा था। अम्मा का अनुभव बोलने से
अम्मा मेरे को एकदम ना खा सके। उनका बेटी नहीं था तभी बोलती थी मेरे को बेटी नहीं, वो खो गया रानी सिस्टर ने मेरे को, वो बेटी नहीं। उसके बाद में उसको भूलने का उनका माँ नहीं भूल पाती, लेकिन मैं अम्मा से जोड़ने के बाद बेटी समान ये फैमिली में मेरे को एक्सेप्ट किया। लॉकडाउन में मेरा बेटी को शादी हुआ 21 में गाँव में, तो अम्मा और बहुत प्रार्थना किया मेरे बेटी के लिए। हुआ 2 बार उनको मिसकैरेज से उसका प्रेगनेंसी कंसीव होता था, मिसकैरेज होता था 2 बार। और तीसरा बार हम लोग लगातार प्रार्थना में पास्टर जी और इधर कलीशा वाले सभी जन ने प्रार्थना में रखा। अच्छा से 9 महीना आया, अम्मा को बताया मैं 9 महीना पूरा हो जाएगा अम्मा, मैं जाके आता है। मेरा पोता को देखने के लिए अम्मा रहेगा करके मैं सोचा था। अम्मा बोलती थी पोती को लड़का होएगा, चिंता मत करो, अच्छा से नॉर्मल डिलीवरी। हम लोग ऐसे ही प्रार्थना करता था इंग्लिश नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए। रियली गॉड अद्भुत रीति से मेरा बेटी को नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए सहायता किया। मेरा बेटी और पोता दोनों एकदम तंदुरुस्त हैं, वो दोनों बहुत ही अच्छा हैं। परमेश्वर नावाला मी धन्यवाद देतो तर की प्रभू आज भजन संहिता स्तोत्र संहितामध्ये 103 मध्ये बोललेलं आहे, हे माझ्या जीवा तू परमेश्वर धन्यवाद कर, हे माझ्या सर्वांतर्यामा परमेश्वर धन्यवाद कर। का म्हणजे का आपण धन्यवाद करतो की आजपर्यंत प्रभूने आम्हाला सांभाळलं, आजचं जीवन दिलं। महत्त्वाचं आहे, काम धंदे आपल्यामध्ये आहेत, पण महत्त्वाचं आहे जीवन दिलं म्हणून आम्ही सर्व काही करू शकतो। आम्ही प्रभू धन्यवाद। गेल्या आठवड्यामध्ये याच आठवड्यामध्ये माझ्या मुलाला आम्ही प्रार्थनेसाठी तयार होऊन निघालो, लेट झालो होतो, पण प्रभूची इच्छा असेल काहीतरी म्हणून लेट झालो आम्ही। आणि आम्ही निघालो, त्यानंतर माझा मुलगा आला घरात पडला आणि आम्हाला वाटलं मस्करी करतं काय, पण ते हात पायचे कडक झाले म्हणून असं ते हात दोन वर केले हाते आणि पाय एकदम कडक झाले लाकडासारखे आणि डोळे एकदम बिरबिर करायला लागलं। म्हणलं काय झालं काय, हे उठले, प्रार्थना करायला लागली। प्रार्थना मला म्हणली पाणी घ्या पाणी घ्या, पाणी शिपाळलं तोंडावर। 15-20 मिनटं झाले, आम्ही रडून प्रार्थना केली। म्हणजे प्रभू तूच आमचा डॉक्टर, तूच आहेस आमचा वैद्य, तूच आहेस, तूच सर्व काय करणार आहे। आणि खरोखर प्रभूने त्याला 10-15 मिनटात पुन्हा नवीन जीवदान दिलं की प्रभू अद्भुत रीतीने काय करतो। जर आम्ही इकडे आलो असतो आणि त्यानंतर काय झालं असतं, आजूबाजूच्या लोकांनी काय केलं असतं, प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये येऊन ॲडमिट केलं असतं, म्हणजे बिल वाढले असते पुरेसे। पण देवाने काय केलं, टाईम केला आणि त्या टाईम झाल्यामुळं आम्हाला तिथं थांबलो। ही देवाची काय कृपा आहे आणि देवाने आमच्यावर कृपा केली, दया केली, त्यामुळे प्रभूला धन्यवाद देतो आणि त्याला नवी जीवन दिलं त्याबद्दल। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरा आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। प्रभु की स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं, सच में परमेश्वर ने हमने जो गवाही सुनी अक्का की और हमारे ब्रदर की, मगर ब्रदर की, तो ऐसा ही है कि उसने हमारे विलाप को नृत्य में बदला है। हालेलुया। जहाँ पे हम दुखी थे वहाँ पे परमेश्वर ने हमें आनंद दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भजन संहिता 30 अध्याय 11 और 12 में लिखा, अगर हम मृतक हो जाएंगे तो क्या हम उसको धन्यवाद दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो ये सच में अद्भुत हमें परमेश्वर ने समय दिया कि हम उसका धन्यवाद करें। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ हमारे सारे भाई बहनों के लिए, हर परिवार के लिए जिनको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, हमारे बीच में इकट्ठा होने दिया, और परमेश्वर जो हमारे बीच में है और हमें इकट्ठा होने में मदद किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर के बिना मैं
एक कदम भी उठा नहीं सकती। वो मुझे चलाता है तो मैं चलती है, और सच में उसका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। आज सुबह को मैं काम कर रही थी तो जब मेरे हाथ में टॉवल था और मैं चाय परोस के रखा, और जैसे ही उस टॉवल को नीचे रखा पूरा वो आग हो गया, और उसके बाजू में गैस का पाइप था। और थोड़ी देर बाद फिर मुझे किसी को चाय देना था, तो मालूम नहीं जो मिडिल का गैस था उसके ऊपर प्लेट था स्टील का, और मैंने वो प्लेट को उठाया उसको ढक्कन रखने के लिए, तो उठा के मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो इतना गर्म था, उसके नीचे गैस चालू था और मेरे ये सब उंगलियां जल गई। लेकिन आप देख सकते हैं एक भी बबल नहीं है उसके ऊपर। प्रभु बहुत अच्छा है, वो बहुत अद्भुत रीति से सुरक्षा देता है। वो कहता है तुझे आग में मैं बचाऊंगा और तुझे पानी कोई हानि कर नहीं सकता। सच में वो बहुत अच्छा है। दिन में वो हमें बादल की तरह ढके रहता है और रात में आग के खंभे की तरह वो हमारी अगुवाई करता है। वो बहुत ही अच्छा है और बहुत अद्भुत है, और सच में उसके बिना हम चल नहीं सकते हैं। वो हमारा विश्वसनीय पिता है, उसके तुलनीय कोई नहीं हो सकता। बहुत अच्छा। God for each one of you. और मैं धन्यवाद करता हूँ आप में से हर एक के लिए God प्रभु is को। really having a great plans for us. और परमेश्वर के पास सच में हमारे लिए अद्भुत योजनाएं हैं। Having tests and trials comes that you may be called victorious. आपके ऊपर परीक्षाएं आती है, आपके लिए कश्मकश होती है, लेकिन इसलिए कि आप विजयशाली होकर निकले। We can find that story. We can see in that story that Moses went up on the mountain. हम उस कहानी में, उस दृष्टांत में देख सकते हैं कि ये मूसा उस चोटी पर गया And he was in presence of God. और वो प्रभु के परमेश्वर के 40 उपस्थिति days में था। and 40 nights. 40 दिन और 40 रात। And we know what happened at the end of the end days. और अंतिम के अंतिम दिनों में हमने देखा कि क्या हुआ। At the end of the end days, अंतिम के अंतिम दिनों में, or at the beginning of the end days, अंतिम दिनों की शुरुआत में people gathered together. लोग इकट्ठा होने लगे। Let's open Exodus निर्गमन 32nd chapter 32वां अध्याय and और first पहला verse. वचन। And when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, the people gathered themselves together unto Aaron and said unto him, Up, make us gods which shall go before us, for as for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we want not what is become of him. जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। What people saw? लोगों ने क्या देखा? They saw उन्होंने देखा the Moses delayed to come down out of the mount. मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है। At the end of the end days, अंतिम के अंतिम दिनों में they should have waited more little patiently. वो थोड़ा और धीरज धर के रुकते थे, But they saw. पर उन्होंने देखा। We need to ask what we are seeing. हमें ये जानना है कि हम क्या देख रहे You know, हैं। God is pouring His Spirit mightily upon us. और आप जानते हैं परमेश्वर अपने आत्मा को हमारे ऊपर अद्भुत रीति से उंडेल रहा है। We speak wisdom. बुद्धि को बोलते हैं। It's all because of God. ये सिर्फ परमेश्वर की वजह से है, Because of His love. उसके प्रेम के खातिर। What we see, हम क्या देखते हैं?
what we are looking at? हम किसकी ओर देख रहे हैं? Are we looking at delay, क्या हम विलंब को देख रहे हैं, देरी को देख रहे or हैं, are we seeing the perfect plan of God happening in our lives? या परमेश्वर के परिपूर्ण इच्छा को जो हमारे जीवन में पूरी हो रही है? How can something happen which you don't know? कुछ ऐसा कैसा हो सकता है जो आपको मालूम नहीं है? You know what is happening आप जानते हैं क्या हो रहा है, because you are walking with God. क्योंकि आप परमेश्वर के साथ चल रहे But हैं। these people, पर ये लोग, they saw उन्होंने देखा that Moses delayed to come. कि मूसा को देरी हो गई आने में। You know, they forget the promises. अब जानते हैं वो अभिवचनों को भूल जाते हैं। Very easy to forget all promises. बहुत आसानी से अभिवचन भूला जा Very सकता easy है। to forget their partner, their leader, their friend. उनके पार्टनर को, उनके अगुआ को, जो उनका दोस्त है, उन्हें भूल सकते हैं। They forget all miracles, wonders. सारे चिन्ह चमत्कार को वो भूल गए। People, they lacked patience. लोगों ने धीरज को गवा दिया They didn't have much long suffering. और उनको धीरज ही नहीं रहा। They saw. उन्होंने देखा। You know, when you see something wrong, जब- something wrong happens with you. जब आप कुछ गलत देखते हैं तो आपके साथ कुछ गलत हो You जाता see है। the things which you should not, then that things comes to take place which should never come to take place. जो गलत चीज आप देखते हैं, वो चीजें जो आपके साथ नहीं होनी चाहिए, वो गलत चीजें आपके साथ हो जाती है। They saw. उन्होंने देखा। It's very true, it delayed. How much it delayed? ये बहुत सच है कि मूसा को आने में देरी हो गई, पर कितनी देरी हो गई? What is a fixed time? क्या फिक्स टाइम है वो? Why people never knew about that time? उसके बारे में लोग क्यों नहीं जानते, उस समय के बारे That में, when Moses will come. कि कब मूसा आएगा? The people gathered themselves. लोग इकट्ठा होने लगे। You know, when you gather, something happens. जब आप इकट्ठा होते हैं तो कुछ होता है, But why you gather? पर क्यों आप इकट्ठा What होते is हैं? the cause and reason of gathering together? और इकट्ठा होने का कारण क्या है? We need to ask question. Why I come? We come together. हमें ये सवाल पूछना है अपने आप से कि हम इकट्ठा क्यों होते हैं? Why people gather together? लोग इकट्ठा क्यों होते These हैं? people gathered together with not good intention. ये लोग जो है इकट्ठा हुए पर सही विचार से नहीं। Their intention was wrong. Their उनका thoughts were विचार, wrong. उनकी सोच गलत थी। As they gathered like same as in Genesis 11th chapter 3rd and 4th verse. वो उस तरह से इकट्ठा हुए जैसे उत्पत्ति 11वां अध्याय 3 और 4 They वचन। gathered together to build a Tower of Babel. वो बाबेल टावर को बांधने के लिए They इकट्ठा said to हुए। one another, let's come together. वो एक दूसरे से कहने लगे, आओ हम इकट्ठा हो जाए। Let's build for ourselves a city आओ हम अपने आप के लिए नगर बांधे with a tower that reaches up to heaven, और वो बड़ी इमारत जो स्वर्ग को छू सके, that we may have a name कि हमारा नाम हो जाए for ourselves हमारे लिए and not be scattered over the face of the earth. और सारी पृथ्वी पर हम फैले नहीं। Is it a good counsel? क्या ये सही समझ है? Is it a good thought? क्या ये सही विचार है? Is this thought proceeded from the Father of heaven? क्या ये स्वर्ग में जो पिता है उसकी ओर से आया है? You are Aaron. आप हारून हैं, You are God's children. आप परमेश्वर के बच्चे हैं। You have a God's purpose in your life. आपके जीवन में परमेश्वर का खास मकसद है। Why people are coming to you? लोग आपके पास क्यों आ रहे You हैं? need to check. आपको जांचना है। Why you are among in midst of that people? आप उन लोगों के बीच में क्यों हैं? Who are you? आप कौन हैं? Know your calling. अपने बुलावट को जानिए। Why God called me? परमेश्वर ने मुझे क्यों What is बुलाया? the purpose of His call in my life? उसका मकसद क्या है मेरे जीवन के Why लिए? I know Him?
मैं उसे क्यों जानूं? Where I stand in God's kingdom? परमेश्वर के राज्य में मैं कहाँ? What is my place? मेरी जगह कहाँ है? Why I am here? मैं क्यों यहाँ पर हूँ? What is the purpose in my life? मेरे जीवन में मकसद क्या है? Who are you? आप कौन है? What are you? आप क्या है? Who is leading you? आपको कौन अगुवाई They कर रहा said है? that Moses. वो कहने लगे वो मूसा। Who is leading you? कौन आपको अगुवाई कर रहा है? Israel came out of slavery. इज़राइल मिस्र देश से गुलामी से बाहर आया, But the slavery has not gone out. पर वो गुलामी उनसे बाहर नहीं निकली। The Egypt has not gone out. मिस्र उनसे बाहर नहीं They निकली। were stuck in the slavery in their brains and their hearts. उनके हृदयों में, उनके दिमागों में वो गुलामी पड़ी थी। We need to check what people are speaking with me. हमें ये जांचना है कि लोग मुझसे क्या बात कर रहे हैं। Are they spiritual? क्या वो आत्मिक है Are they carnal? या वो दैहिक है Are they rebellious? या विरोधी है? Whom am I listening? मैं किसको सुन रहा हूँ? In Psalm 1:1, भजन संहिता 1:1, is the man that walked not in the counsel of ungodly. क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। He walks not on counsel. वो युक्ति पर नहीं Whose चलता। counsel you are taking in? किसकी युक्ति आप अंदर लेते हैं? Counsel is so important. युक्ति इतना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। Solomon the great king said about counsel. सुलेमान जो सबसे बड़ा राजा था, उसने युक्ति के बारे में कहा। He said, उसने people कहा- perish because of lack of counsel. युक्ति नहीं है इसीलिए नाश होते हैं. But he said, वो कहता there है is safety in the counsel. युक्ति में सुरक्षा है। So question is, whose counsel I am getting? तो सवाल ये है कि किसकी युक्ति मुझे मिल रही In है whose counsel I am walking? और किसकी युक्ति में मैं चल रहा हूँ, Whose counsel I am taking? किसकी युक्ति मैं ले रहा हूँ, Why I am taking? मैं क्यों ले रहा Who हूँ, am I? मैं कौन हूँ, Why God appointed me? परमेश्वर ने मुझे क्यों नियुक्त Why किया, God called me? परमेश्वर ने मुझे क्यों He बुलाया। says, blessed is the man who stands not in the way of sinners. वो कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं रहता. Which path you choose? कौन सा मार्ग आप चुनते हैं, Why? क्यों, Who is forcing you? कौन आपको जबरदस्ती करता You है? are alone? क्या आप अकेले I हैं? told you, majority never wins. मैंने आपको कहा मेजॉरिटी नेवर विंस। Majority wins करके जो स्टेटमेंट है वो कैंसिल कर देने का. Don't flow with majority. बहुत 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 लोग साथ में इकट्ठे हो गया वो जीत जाएंगे ऐसा नहीं है. You alone stand. आप अकेले खड़े हो जाइए, That is the purpose of God. वही परमेश्वर का मकसद No है। one is there to play with me. कोई भी नहीं है मेरे साथ खेलने के लिए। That's truly very bad story. ये बहुत ही बुरी कहानी है। But why you should play with nonsense? पर गलत लोगों के साथ Why you should play with ungodly? और जो परमेश्वर के अभक्तों के साथ क्यों? Why you should mix yourself with evil? क्यों अपने आप को दुष्टों के साथ एक करना? Because there is no meat. Have you ever seen lion eating only grass? मांस नहीं है, इसीलिए क्या आपने कभी देखा कि जो शेर है वो घास खाए? घास कोई चढ़ते बैठ रहा है. क्या हो गया शेर साहब, क्या बात है, आप घास क्यों खा रहे हैं? अरे मटन ही नहीं मिला आज. ना धोखा हो गया मेरे से. नो, वी आर स्टैंडिंग हम खड़े हैं एंड वी नीड टू स्टैंड. और हमें खड़ा होना है। Someone stand or not. कोई खड़ा हो या नहीं, Someone walk or not. कोई चले या नहीं, The whole world may move one side, पूरी दुनिया एक साइड क्यों ना हो जाए, but you be on God's side. पर आप परमेश्वर की ओर हो जाओ। Your pastor, आपका पास्टर, your whole church आपकी पूरी कलीसिया are going one side. एक साइड क्यों ना हो जाए, You stand right with God. आप परमेश्वर के साथ सही हो जाओ। Then because of you, तब आपके खातिर the whole church will be saved. पूरा कलीसिया बच जाएगा। If you move, अगर आप हिल गए then everything moves. तो सब हिल जाएंगे। Who are you? आप कौन है? Why God called you? परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया? Now sit in the seat
of the scornful. और नठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। Where you are sitting? कहाँ पर आप बैठते हैं? Why you are sitting? आप क्यों बैठते हैं? What is the cause? और मकसद क्या है? They came to Aaron. वो हारून के पास गए, They were saying something. वो कुछ कहने लगे, They were saying anything. वो कुछ भी कहने लगे। We need to check, who am I? हमें ये जांचना है कि मैं कौन हूँ। They were telling, वो कह रहे थे, that man who brought us out of the land of Egypt, we wot not what is become of him. उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। They don't know. वो नहीं जानते, They don't have proper relationship. उनका सही संबंध नहीं है। Cain also, he doesn't knew what happened to Abel. कैन को भी मालूम नहीं था कि आबिल को क्या हो गया। Is it true? क्या ये सच है? Who killed Abel then? तो आबिल को कौन मारा? किसने घात किया? Where is your brother? आप, तेरा भाई कहाँ है? Cain said, और कैन ने कहा, am I a keeper of my brother? क्या मैं मेरे भाई का रखवाला हूँ? If not you, अगर आप नहीं then who? तो कौन? You are. आप ही है। They said, we don't know what happened to him. उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम उसे क्या हो गया। They knew one thing, वो एक चीज जानते थे that this man कि ये पुरुष brought us out of Egypt. कि ये पुरुष हमें मिस्र से बाहर निकालने आया। If you really know that statement, अगर सच में आपको ये मालूम है then surely you will wait for him. तो जरूर आप उसके लिए रुकेंगे। You will wait one more day, एक और दिन रुकेंगे, one more hour. एक और घंटा रुकेंगे। We need to check, you are Aaron. हमें जांचना है कि आप हारून है, You are God's purpose. आप परमेश्वर का मकसद है। When people come to you, जब लोग आपके पास आते हैं you need to see what they are seeing. तो आपको ये देखना है कि वो क्या देख रहे हैं। If they are not seeing right things, अगर वो सही चीजें नहीं देख रहे हैं then don't flow with them. तब उनके साथ मत बहो। When they see, जब वो देखते हैं that time what you see. उस समय आप क्या देखते हैं? When they speak, जब वो बोलते हैं then what you speak. तो आप क्या बोलते हैं? Is your statement same as their statement? आपका कहना वही होता है जो वो कहते हैं? Is your vision as their vision? क्या आपका दर्शन उनका दर्शन है? Don't you know what you are? क्या आप ये नहीं जानते कि आप कौन है? Don't you know who you are? आप नहीं जानते क्या कि आप कौन है? Don't you know where you stand? आप ये नहीं जानते कि आप कहाँ पर खड़े हैं? You know they are rebellious people. आप जानते हैं कि वो विरोध करने वाले लोग हैं। You know they don't desire unity and love. और आप ये भी जानते हैं कि वो प्रेम और एकता को नहीं But चाहते। you are a spiritual people. पर आप आत्मिक लोग हैं। You are called to walk in love आप बुलाए गए हैं कि प्रेम में बहे and be in the bounds of love and unity. और प्रेम के बंधन में और एकता में बंधे रहे। What you think, आप क्या सोचते हैं that exactly you are. वही आप है। Which thought you entertain, और कौन से विचार को आप प्रोत्साहित करते हैं that exactly you are. वही आप है। Why you entertain that thought? और उस विचार को आप क्यों बढ़ावा देते Your हैं? personality is very different. आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत ही अद्भुत Your अद्भुत personality है। is that what God calls you. आपकी पर्सनालिटी वो है जो आपको परमेश्वर कहता है। He says, wait on the Lord God Almighty. वो कहता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर तुम रुके रहो। Your personality is you are the royal priesthood. आपकी पर्सनालिटी ये है कि आप जो है याजकीय याजक गण है। राजकीय याजक गण है. You are God's people. आप परमेश्वर के लोग हैं। You're people of God. आप परमेश्वर के लोग हैं। What you see, आप क्या देखते हैं? what you hear. आप क्या सुनते हैं? Jesus said, यीशु ने कहा,
in Matthew 11:4. मत्ती 11:4 It said, show John again those things do hear and see. यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो। What you see, आप क्या देखते हैं? what you hear, आप क्या सुनते हैं? what you see and hear from God, आप क्या सुनते हैं और क्या कहते हैं प्रभु की ओर से? anyone may say anything. और कोई भी कुछ भी क्यों न कहे, Train your eyes and ears to hear God. अपने आँखों को और कानों को सिखा दो परमेश्वर को सुनना, That what I see, कि मैं क्या देख रहा हूँ, what I hear. मैं क्या सुन रहा हूँ। Jesus said to John's disciples, यीशु ने यूहन्ना के शिष्यों से कहा, what you see तुम क्या देखते हो and what you hear, और क्या सुनते हो, go and tell that same. जाओ और वैसा ही सबको बताओ। When everything fails, चीजें टूट जाती है, नाकामयाब हो जाती है, नाकामयाब हो जाती है, जानो कि परमेश्वर कभी नाकामयाब नहीं होता है. God never fails. परमेश्वर कभी भी नाकामयाब नहीं होता। Here Paul says, when I planned this, did I do it carelessly or do I make my plans by human standards? 2 Corinthians 1st chapter 17th verse. दूसरा कुरिन्थियों का पत्र 1 अध्याय 17 वचन। इसीलिए मैंने जो यह इच्छा की थी, तो क्या मैंने चंचलता दिखाई, या जो करना चाहता हूँ क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूँ? We need to check what are my plans. हमें ये जांचना बहुत जरूरी है कि मेरी योजनाएं, युक्तियाँ क्या है। What I plan. मैं क्या युक्ति करता हूँ? Is it carelessly I do anything? क्या मैं ऐसे ही यूं ही कर लेता हूँ? Carelessly means carelessly. क्या ये चंचलता है? कुछ भी कर दिया, कैसा भी कर दिया, कभी भी कर दिया, ऐसा है? और are we doing it in fear of God? या हम परमेश्वर के भय से करते हैं? Do I make my plans by human standards? क्या मैं मेरी युक्तियाँ लोगों के अनुसार बनाता हूँ? We need to check ourselves. हमें अपने आप को जांचना है। You are God's child. आप परमेश्वर के बच्चे हैं। You're God's anointed. आप परमेश्वर के अभिषिक्त हैं। Why God called you? परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया? To plan in which way? किस तरीके से योजना बनाने To के think लिए in what way? और किस तरह से सोचने के लिए To speak in which way? और किस तरह से बातें करने के लिए। In verse 20 he said, for all your promises are yes and amen. 20 वचन में वो कहता है, तेरे सारे अभिवचन हाँ और आमीन है। In Christ we say amen for the glory of God. हम क्रिस्त में आमीन कहते हैं परमेश्वर की महिमा के Wait लिए। little more on God. परमेश्वर पे और थोड़ा रुक, Wait on Him. उस पर रुका रहे। Wait on God beyond all your strength. आपके पूरे सामर्थ से परे उस पर रुका रहे। If you really love God, अगर आप सच में प्रभु से प्रेम करते then हैं, surely you will wait on God. तो जरूर आप प्रभु पर रुके रहेंगे। And to love God, और परमेश्वर हम पे प्रेम करने के लिए we need to love Him with all our heart, all our mind, with all our strength. हमारे पूरे सामर्थ के साथ, पूरे ताकत के साथ, पूरे मन के साथ उस पर रुके रहेंगे। Whatever may happen all around you, आपके चारों ओर कुछ भी क्यों ना होता रहे, multitudes may come towards you. झुंड, बहुत बड़ा झुंड आपकी ओर They may आए, come with any counsel, किसी भी युक्ति से क्यों ना आए, but you need to trust God. पर आपको परमेश्वर पे भरोसा You करना है। need to trust God completely with whole of your heart. अपने पूरे हृदय से प्रभु पर रुके रहना Do है। not rely on your own opinion or their opinions. अपने खुद के समझ और उनकी समझ युक्ति के अनुसार मत कर। अपना समझ अपना समझ या उनका समझ. या उनकी समझ के अनुसार मत कर। Have God's thought. परमेश्वर का विचार रख, Come to Him. उसके पास आओ, Speak to God. उससे बातें Here I करो। see Aaron.
मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आरोन, he never went to God. वो परमेश्वर के पास गया ही He नहीं, went after people's counsel. वो लोगों की युक्ति के अनुसार गया। Now each one of us, अब हम में से हर एक our leader, अगुवा है, our priest, याजक है, are his kingdom, उसका राज्य है, and God wants us to go to him. और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास जाएं, Ask him, उससे पूछिए, acknowledge him. उससे जानिए, He will make your path smooth. वो आपके मार्ग को मुलायम करेगा। Jesus declared in Matthew 22 and 37th verse, यीशु मसीह ने मत्ती 22:22 37th verse, और उसका 37 वचन में कहा, love the Lord with all your heart, with all your mind, परमेश्वर से अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से प्रेम with करो, all your strength. अपने पूरे सामर्थ्य If है। you love God अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते with all हैं your heart, अपने पूरे हृदय के साथ, with all your mind, अपने पूरे मन के साथ, with all your strength, अपने सामर्थ्य के साथ, you will wait on God. आप परमेश्वर पे रुके You रहेंगे। will not wait on anything else. आप किसी और पर नहीं For रुकेंगे, your waiting will reward you. क्योंकि आपका रुकना आपको प्रतिफल देगा। Your waiting is on God. आपका रुकना परमेश्वर पर है, Your waiting on is on Him. आप उसके ऊपर रुके हैं। Do not haste. जल्दबाजी मत करो, Do not haste. जल्दबाजी मत करो। If you really believe, अगर आप सच में विश्वास करते हैं, Isaiah 28:16 says, यशायाह 28:16 कहता है, those or whoever believes जो कोई विश्वास करता है will not act hastily. वो जल्दबाजी से काम नहीं करेगा। गड़बड़ी में काम नहीं करेगा। अरे क्यों रे बेटा ये कर दिया? Because I not waited. क्योंकि मैं रुका नहीं। Here we are looking at Aaron. यहाँ पर हम हारून की ओर देख सकते हैं। You are royal priesthood. आप Royal राजकीय priesthood. याजकगण हैं। Never doubt God. परमेश्वर पे कभी शक मत करो। Never think it may be or that may be. ऐसा कभी मत सोचो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ऐसा होगा या वैसा होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा. You are not following any dead God. आप किसी मृतक परमेश्वर के पीछे नहीं चलते। Your God lived. आपका परमेश्वर जीवित है, He was resurrected from the dead. वो मृतकों से जीवित हुआ। Why you are standing on that place? आप उस जगह पे क्यों खड़े हैं? Wherever you are, जहाँ कहीं भी आप हैं, whatever you are, क्या कुछ भी ना है, your mother, आप माँ है, your sister, आप बहन है, your brother, आप भाई है, whatever you are, कोई भी आप क्यों ना हो, why you are that? आप वो क्यों है? If you will not stand, अगर आप खड़े नहीं होंगे, you will make many to fall. आप बहुतों को गिरा देंगे। God wants you to stand alone. Write it in your heart, mind, परमेश्वर brain. चाहता है कि आप अकेले खड़े रहो, ऐसा पूरा दिलो दिमाग में लिख दो। Never doubt God. कभी परमेश्वर पर शक न करो। He that doubts God is damned. वो जो वो परमेश्वर जो परमेश्वर पे शक करता है, वो दंड पाता है, दोषी ठहरता है, नाश हो जाता है. Not to doubt God. परमेश्वर पे शक नहीं करना। How can you doubt this? How can you doubt God? कैसे आप परमेश्वर पे शक कर सकते हैं? He is God. वो परमेश्वर है, You need to trust Him. आपको उस पर भरोसा करना है। So we need to check our own thoughts. तो हमारे विचारों को परखना है, We need to check our own selves. हमारे अपने आप को परखना है, For God knows the thoughts of all men. क्योंकि परमेश्वर हर मनुष्य का विचार जानता We है। need to check, is my thought clean? हमें ये जांचना है कि क्या मेरा विचार सही है, Is my thought pure? क्या मेरा विचार शुद्ध है, Am I having a good thoughts? क्या मेरे पास सही विचार है। In अच्छे 11th chapter, विचार। Paul says in 1 Corinthians, if you judge yourself, 11वां अध्याय में पहला कुरिन्थियों में पौलुस कहता है कि अगर
तुम अपने आप का न्याय you करते will not be judged. तो तुम्हारा न्याय You know who you are. आप जानते हैं आप कौन है। You are a special people आप खास लोग हैं that you may not be condemned by any. कि आप पर कोई भी दोष न लगा सके। You may not be judged according to this world. इस दुनिया के अनुसार तुम्हारा You are न्याय न not हो। called to flow according to the standards of this world. इस दुनिया के तौर तरीकों में तुम बहो इसलिए नहीं You बुलाया। have a special standards to think. आपका खास स्थान है जैसे आप सोच सकते हैं। आपका खास स्थान है, उस तरीके से आपको सोचना है। If anything is delayed from God, अगर कुछ परमेश्वर के ओर से देरी हो गई है, believe it, it is for your benefit. विश्वास करो कि ये आपके फायदे के लिए है। A God answers on time. क्योंकि हमारा परमेश्वर नियुक्त किए हुए समय पर उत्तर देता है। He never delays anything. वो कुछ भी देरी नहीं But करता। if you think and if you know that he is delaying, पर अगर आप ये सोचते हैं कि वो देरी कर रहा as है, in 2 Peter, 3rd जैसे chapter, 8th दूसरा verse. पत्रस 3 अध्याय 8वां वचन। But beloved, do not forget this one thing, हे प्रियो, यह बात तुमसे छुपी न रहे that with the Lord 1 day is like 1,000 years and 1,000 years like 1 day. कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के If बराबर you है। are with Lord, अगर आप प्रभु के साथ हैं then believe it. तो विश्वास कीजिए For you, आपके लिए, even for you. आपके ही लिए, You know, because you are with the Lord, इसलिए क्योंकि आप प्रभु के साथ है। 1 day एक दिन is as 1,000 years. 1000 साल के बराबर है And 1,000 years और 1000 साल as 1 day. एक दिन के बराबर। He is a God, He does haste for our benefit. वो हमारा प्रभु है जो हमारे लिए जल्दबाजी करता है। Don't worry. चिंता मत करो, He is much more mindful than anyone in this world. उसका मन इतना आपसे बड़ा है, आप सोच भी नहीं सकते। इस दुनिया में किसी का भी ऐसा नहीं। He is mindful of you. उसका मन आपसे बड़ा है, He is thinking for you. वो आपके लिए सोच He रहा is है, thinking for your husband. आपके पति के बारे He में is सोच thinking रहा for your है, wife. आपके पत्नी के बारे He में is सोच thinking रहा for है, your children. वो आपके बच्चों के He is बारे में thinking सोच for रहा है, those who are perishing. Yata. उनके बारे में जो अब तक भी वो नाश हो रहे हैं उनके लिए। In 9th verse, he says, the Lord is not slack concerning his promises. प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं He करता। never slack concerning his promises. उसके प्रतिज्ञा के विषय में कभी कभी भी देर But नहीं there are करता। people, they think God is slack. पर लोग हैं जो सोचते हैं कि प्रभु देरी They करता may है। think anything, church. एक कलीसिया को कुछ भी क्यों न सोचे, You need to trust God. आपको परमेश्वर पे भरोसा For करना all है, his promises are yes and amen. क्योंकि उसके सारे अभिवचन हाँ और आमीन There is है। no yes or no, no fluctuation is there. उसका हाँ ना ऐसा नहीं है। He is not willing that anyone should perish. और उसे अच्छा नहीं लगता कि कोई भी नाश हो He जाए। wants that everyone should come to repentance. वो चाहता है कि हर एक पश्चाताप करे। Therefore, let us focus on God. तो आओ हम प्रभु पर अपना मन फिराए, Let us look at Him. उसकी ओर देखें, Let us look at the matters which God is showing us. और जो परमेश्वर हमें दिखा रहा है उन बातों को Let us look at देखें the promises which God is showing us. और उन प्रतिज्ञाओं को देखें जो परमेश्वर हमें बता Not रहा on है। the things which people are flowing on. उन पर नहीं जो जिस पर लोग बह रहे Our हैं। God is a promise giver. हमारा परमेश्वर अभिवचन को पूरा करने वाला है। Let us patiently wait on Him. तो क्यों ना हम उस पर आइए, हम क्यों ना उस पर धीरज धर के खड़े रहे। Patience is a big role which works powerfully in our lives. धीरज जो है वो बहुत बड़ा हथियार है जो हमारे जीवन में बहुत सामर्थशाली रूप से काम करता है। You are very special आप बहुत ही खास है because you don't have any rules of this world. क्योंकि आपको इस दुनिया के नियम लागू नहीं है। You have a special rules. आपके खुद के You खास have a नियम special है। statutes and you have a special commandments from the Lord. आपके लिए परमेश्वर की
अद्भुत आज्ञाएं हैं। You have the word of God. आपको परमेश्वर का वचन है That word governs you. और वो वचन आपको चलाता है। That word reigns on you. वो वचन आप पर राज्य करता है। That's why you are special. इसीलिए आप खास है। You know yourself. आप अच्छी तरह से जानते Who are हैं you? आप कौन है, What are you? आप क्या है, How you need to live. आपको कैसा रहना How है, you need to act. कैसा आपको करना है। Here in 1 Peter 2nd chapter Yeah. 7th verse, पहला पत्रस दूसरा दूसरा अध्याय 7वां 7th verse वचन। says, Therefore, let you who believe he is precious, but those who are disobedient, the stone which the builders rejected has become a chief cornerstone and the stone of stumbling and a rock of offense. अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। You know, you who believe, जो विश्वास करते आप हैं, जो विश्वास करते हैं, आपके लिए यीशु मसीह प्रेशियस है। He is precious. वो बहुमूल्य है, He is precious to you. वो आपके लिए Then बहुमूल्य है। surely you will wait on him. तो जरूर आप उसके लिए रुक That जाएंगे precious will answer you. और वो बहुमूल्य आपको उत्तर He is देगा your cornerstone. और वो आपका कोने नींव का का सिरा है। He is your stepping stone. वो जो है आपका ऊपर उठने का ऊपर लिए उठने एक की- पत्थर है। You will stand on him. आप उस पर खड़े रहेंगे। He is your rock. वो आपकी चट्टान He is है, your fortress. वो आपका शरण स्थान है। You don't need to worry. आपको चिंता नहीं करनी But for है। those who are disobedient, पर उनके लिए जो आज्ञा का पालन नहीं they करते stumble at this stone. वो इस पत्थर पर हिल जाते हैं, They stumble on him वो उस पर हिल जाते हैं because they are disobedient. क्योंकि वो अवज्ञा करते They हैं। are appointed for that. वो उसके लिए नियुक्त किए गए But हैं। you are a royal priest. पर आप जो है राजकीय याजक गण है, You are a holy nation. आप पवित्र राष्ट्र है, You are a special people. आप उसके खास लोग हैं You are called with a special purpose. और आपको खास मकसद के लिए बुलाया गया है। Wherever the world may run, जहाँ कहीं भी दुनिया चले, in any direction people may move, किसी भी दिशा में लोग क्यों न चले, you have a special direction. आपको खास दिशा दी गई है। You are called out of darkness into his marvelous lights. आप अंधकार से बाहर ज्योति में लाए गए हैं। You are representative of God. आप परमेश्वर के नियुक्त किए गए हैं And you are the people called to wait on God. और आप वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने परमेश्वर पर रुकने के लिए बनाया गया है। You will be provided with an oracles of God. आपको परमेश्वर की वाणी दी जाएगी The oracles of God will work powerfully in your mouth. और परमेश्वर की वाणी आपके मुख में सामर्थशाली रूप से काम You करेगी। know very well man shall not live by bread alone. और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं He जीता, lives by every word which proceeds out of the mouth of God. पर वो उस हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वचन है With it he lives. उससे वो जीता And है। you are the people who are called to wait on him. और आप वो लोग हैं जिन्हें उसने रुकने के लिए बुलाया You है। need to wait on him. आपको उस पर रुकना Be है। not afraid of anything and anyone. किसी भी चीज से डरिए मत। Those who walk according to his statutes and ordinances, they are blessed. वो जो उसके नियमों के अनुसार वो चलते हैं, जो उसके नियमों के अनुसार, उसके आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, वो आशीषित है। But those who don't walk according to his statutes and commandments, पर वो जो उसके आज्ञाओं के अनुसार और नियमों के अनुसार नहीं चलते they are not blessed. वो आशीषित They नहीं don't know है। God. वो परमेश्वर को नहीं जानते। You are not called to heed them. आप इसलिए नहीं बुलाए गए कि आप उनका सुने, किसी और का सुने, उस भीड़ का सुने, because they don't have an intimate relationship with God. इसलिए क्योंकि उनका गहरा संबंध ही नहीं है The परमेश्वर के one साथ। who brought you out of Egypt, वो जिसने आपको मिस्र देश से बाहर the निकाला, one who brought you out of slavery,
वो जिसने आपको गुलामी से बाहर the one निकाला, who brought you out of sin, वो जिसने आपको पाप से बाहर the one निकाला, who brought you out of past and darkness. वो जिसने आपको अंधकार के सामर्थ से बाहर निकाला, He lives forever and ever. वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित He है himself will surely lead you to the end. और वो आपको अंत तक अगुवाई करेगा। He is your victory. वो आपकी विजय है And he will lead you in victorious journey. और He will give you a victorious journey. वो आपको विजयशाली का सफर देगा। No one else can lead you. कोई भी आपकी अगुवाई नहीं कर सकता You can't replace him by anything else. और उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। He is great God. वो महान परमेश्वर है। He is the one who broke the unclean yoke which was on us. वो वही है जो हमारे ऊपर अशुद्ध जुआ था उसको तोड़ डाला। He has set us free. उसने हमें छुटकारा He दिया है cancelled everything that was against you and on your name. और जो कुछ आपके ऊपर और आपके नाम के ऊपर था उसे उसने कैंसिल कर दिया He wiped away everything which was against you. और जो कुछ आपके विरुद्ध था उसने मिटा डाला। Today Oracle told me one story. आज ओरेकल ने मुझे एक कहानी बताई। I मुझे will put it in my own words. मैं अपने शब्दों में डालता One हूँ। man went to wind एक व्यक्ति हवा के पास गया, and he said, उसने कहा make me like you. मुझे तेरे जैसा बना। And the wind blew very fast और जो हवा थी बहुत जोर से चली, and he was furious. वो And क्रोधित थी he told that man, और हवा ने उस व्यक्ति से कहा I can't make you. मैं तुझे बना नहीं And he blew सकती। faster and faster और वो हवा तेजी से और तेजी से दौड़ी and he took that man to sun और उस व्यक्ति को सूरज के पास लेके गई and he repeated same question और उस व्यक्ति ने वही सवाल किया, that make me like wind. मुझे हवा के जैसा बना। And you know sun said, और आप जानते हैं सूरज ने कहा I can't make you. मैं तुझे बना नहीं The सकता। one who manufactured everything and everyone. वो जिसने हर चीज को रचा है, And he knows very purpose why you have been created. वो अच्छी तरह से जानता है कि तू क्यों रचा गया है। Then go to him and ask. तो उसके पास जा और उससे पूछ। Then that man realized तब वो मनुष्य ने ये जाना that I need to go to God. कि मुझे परमेश्वर के पास जाना है And he went to God. और वो परमेश्वर के पास गया And God answered him. और परमेश्वर ने उसे उत्तर Today दिया। we read Psalm 100. आज हमने भजन संहिता 100 पढ़ा, 100। And we know that God made us all. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको बनाया। He has made none of us without purpose. उसने हम में से किसी को भी बिना मकसद के नहीं बनाया. We all have purpose. हम सबको मकसद है। We are with the purpose of हम God. परमेश्वर के मकसद से है। God knows why He created you. परमेश्वर जानता है कि उसने आपको क्यों रचा God knows what is the purpose of yours. और वो अच्छे से जानता है कि आपका मकसद क्या है, Why you are here. आप क्यों यहाँ पर है। In Jeremiah 29:11 he said, यिर्मयाह 29:11 में वो कहता I है, have the thoughts for you. मेरे पास तेरे लिए विचार God है। is having a good thoughts for you. परमेश्वर के पास आपके लिए अच्छे विचार है, Not to harm you. आपको नुकसान के लिए You नहीं। may be surrounded by negative people. हो सकता है आपके चारों ओर नकारात्मक लोग हो। You might not have received the promise of God yet. अब तक शायद परमेश्वर का अभिवचन आप तक पहुंचा नहीं। Wait on Him, उस पर रुके रहो for He is having a great thoughts for you. क्योंकि उसके पास आपके लिए बहुत बड़ी योजना है, Not to harm you, आपके नुकसान की नहीं, not to put you on shame. आपको शर्मिंदा करने की नहीं। He will answer you. वो आपको उत्तर देगा, He will reveal to you everything. वो आपके सामने सब कुछ खुला He will करेगा, solve all your questions. आपके सारे सवालों का उत्तर देगा। He is the Alpha and the Omega. वही अल्फा और ओमेगा है He is the one who is having thoughts for us. और वो वही है जिसके पास विचार है आपके लिए And He will reveal that thoughts to us. और वो विचार हमारे सामने खुला करेगा। He is going to bless you. वो आपको आशीष देगा। Wait on Him. उस पर रुके रहिए, Don't move to right or left. आपके दाएं और बाएं न मुड़े Do not be panicked. और थक मत Do जाइए, not be afraid. चिंता डरिए मत। Don't turn to right or left.
दाएं और बाएं न मुड़े। Don't go after the decisions and opinions of people. लोगों के निर्णयों और उनके ओपिनियंस के पीछे मत जाओ, Go after God. परमेश्वर के पीछे जाओ। Know the will of God for you. परमेश्वर की इच्छा को जानो आपके Father लिए। God, we thank you. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, As you created us, जैसे तूने हमें रचा, manufactured us, हमें तूने बनाया, each one of us, हम में से हर एक को according to the exact purpose which you have, Lord. खास मकसद के लिए जो तेरे पास For हमारे you लिए made है। everyone. तूने हर एक को बनाया, You created everyone. तूने हर एक को रचा, Every vessel you created, you know what is that purpose for that vessel. और हर एक पात्र तू जानता है उस पात्र का मकसद क्या है, Why you have created. तूने क्यों उसे रचा। Father, reveal your will. परमेश्वर पिता, तू अपने इच्छा को हम पर प्रकट कर, Reveal your thoughts. तेरी इच्छा को खुला कर, Reveal your plans तेरी योजनाओं को प्रकट कर to your children. तेरे बच्चों की, That they may stand strong. कि वो सामर्थशाली रूप से खड़े हो That they पाए, may witness you. वो तेरे गवाह बन That they may सके, declare your praises. तेरी स्तुति की घोषणा कर सके, That everyone may know when they look at them, Lord. हर एक जाने जो जब कभी कोई उनकी ओर देखता है That you are the Father of lights. कि तू ज्योतियों का पिता है, You dwell among the lights. और तू ज्योतियों के बीच में रहता है, Your children are lights. और तेरे बच्चे ज्योति है। Lord, you bless them in a unique way. परमेश्वर, तू खास रीति से इनको आश्रित कर। You are a good God. तू अच्छा प्रभु है। Every plan, assignment, schemes which are against them be destroyed in Jesus' name. हर एक जो चालें हैं दुष्ट की तेरे बच्चों के विरुद्ध, वो यीशु के नाम से नाश हो जाए। From the crown of their head to the sole of their feet, let them be well protected, Lord. सर के मुकुट से लेकर पैरों तले वो पूरी तरह से सुरक्षित Let रहे। your purpose, your plans be and amen. तेरा मकसद, तेरी योजना उनके जीवन में हाँ और We आमीन हो know जाए। there is a benefit in your plan. हम जानते हैं कि तेरी योजना में लाभ है। We know there is blessing in your thoughts. हम जानते हैं कि तेरी योजना में आशीष है। We know there are miracles in your thoughts. हम जानते हैं कि तेरे विचारों में चमत्कार There is है। hope for a hopeless situation. हमारी निराशा में तू आशा है। In the hopeless situations, your hope, Lord. हमारी आशाहीन परिस्थिति में तू आशा है। So we prostrate before you. इसीलिए हम We तेरे bow सामने down before नमन करते you. हैं। We receive this हम healing. झुकते हैं और इस चमत्कार को हम Yes, ग्रहण from the करते हैं। hair of a head, हमारे सर के बालों से लेकर, crown of a head, हमारे सर के मुकुट से to the लेकर sole of a feet. पैरों के तलवे तक Let every result of the wounds of Lord Jesus Christ be seen. यीशु मसीह के जख्मों का हर प्रतिफल हमें दिखाई We दे। receive it for His purpose, Lord. हम उसे यीशु के मकसद के लिए ग्रहण करते We हैं, receive for we live for Christ. क्योंकि हम यीशु के लिए जीते We हैं। represent Christ. हम क्रिस्त को दर्शाते We हैं। have no other desire, Lord. हमारी और कोई इच्छा नहीं। Yes, we agree that we lived a life enough in this world. और हाँ, हम ये कबूल करते हैं कि हमने काफी जीवन जी लिया इस दुनिया में। Now on, अब से only for you. केवल तेरे लिए, Only for you, Lord. केवल तेरे लिए। Let your children for you, Lord. तेरे बच्चे तेरे लिए। Only for you, Lord. Every curse be broken down in Jesus' name. हर एक श्राप यीशु के नाम से टूट जाए। Every spell be destroyed. हर जादू टोना नाश हो जाए। Let everyone know they are your children. हर एक जाने कि ये तेरे बच्चे हैं। Every counsel of this world perish. हर इस दुनिया की युक्ति नाश हो जाए। Let your counsel तेरी stand. युक्ति खड़ी रहे। Your people, तेरे लोग those who fear God, जो परमेश्वर का they प्रेम shall मानते do हैं, mighty acts, Lord. वो सामर्थशाली काम We करें। thank you, Lord. We worship you, Lord. We praise you. We thank you for your blessed presence, Lord. We worship you. We praise you. We praise you and praise you and praise you. We magnify your name, Lord. We receive healing right now, Lord. हम
We want a spiritual healing, Lord. आत्मिक चंगाई We को want a mental healing, Lord. मानसिक चंगाई को We लेकर want a physical healing, Lord. शारीरिक चंगाई We ask from our manufacturer. हमारे बनाने वाले से हम We मांगते ask हैं from our creator. हमारी रचने We वाले ask से हम from मांगते him who हैं cared full to the full for us. जिससे मांगते हैं जिसने हमारे लिए पूरी से पूरी To live is Christ for us. जीना हमारे लिए क्रिस्त है And death is glory. और मरना लाभ We worship you. We thank you for the benefit, Lord. हम धन्यवाद करते हैं लाभ के We लिए thank you for the glory. धन्यवाद करते हैं महिमा We के thank you for this precious life which you gave us. धन्यवाद करते हैं अद्भुत जीवन As your children stand alone and जैसे strong, तेरे बच्चे अकेले खड़े रहते हैं और सामर्थशाली और बलवान होकर let them be a blessing for their family. उनके परिवार के लिए वो आशीष Let them be a blessing for the church. कलीसिया के लिए Let them be a blessing for their neighborhood. और उनके आस पड़ोस के लिए आशीष Let them be a great tower, Lord, of blessing. आशीष का बहुत बड़ा घुमट बने Let them be a people of cause for God's purpose. और वो परमेश्वर के मकसद के लोग बने Yes, we worship you. हाँ प्रभु हम Let तेरी them आराधना- never be moved by any word, word. किसी भी शब्द से वो हिल न जाए Let no word ever move them. कोई शब्द इन्हें हिलाए नहीं He lived. वो जीवित रहता है In Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में Amen. आमीन Amen. आमीन